Wherever two or three they gather to lift up the name of Jesus. जहाँ पर दो या तीन एक साथ इकट्ठे होते हैं यीशु मसीह के नाम को उठाने के लिए. Wherever two or three they gather to worship the name of Jesus. जहाँ भी दो इकट्ठे होते हैं यीशु मसीह के नाम की आराधना के लिए. Wherever two or three they gather together to bow down to the lordship of Jesus. जहाँ पर दो या तीन इकट्ठे होते हैं यीशु मसीह की राजा के आगे झुकने के लिए, उसके राज्य को ग्रहण करने के लिए. Wherever that happens, the presence of God comes there. जहाँ पर भी ऐसा होता है वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है. The Spirit of God comes there. परमेश्वर की आत्मा वहाँ पर आ जाती है. The manifest presence of God is available there. वहाँ पर परमेश्वर की दर्शाई जाने वाली होती है. And that same promise is applicable for us this morning. और वही वादा आज हमारे लिए भी यहाँ पर लागू होता है. You know why? क्या आप जानते हैं क्यों? Because we have more than 2 or 3 believers in this place. क्योंकि हम विश्वास करते हैं यहाँ पर 2 से ज्यादा विश्वासी यहाँ पर है. More than 2 or 3 people who worship Jesus in this place. 2 या 2 से लोग जो यहाँ पर है जो यीशु मसीह की आराधना करते हैं. More than 2 or 3 people who have bowed down to the lordship of Jesus in this place. 2 या 3 से व्यक्ति जो यीशु मसीह के लिए झुकते हैं. More than 2 or 3 people in Delhi who have said we want God's presence in Delhi. और यहाँ पर 2 या 3 से ज्यादा व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं हमें दिल्ली में परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता है. You know, I don't know how you would take this bad news or good news, but let me tell this to you. मेरे को नहीं पता आप इस बात को एक अच्छा समाचार समझ के लेंगे या दुखद समाचार लेके लेंगे, मगर मैं आपको ये समाचार देता हूँ. God doesn't send revival because you have faith to believe him for a revival. परमेश्वर बेदारी को इसलिए नहीं भेजता क्योंकि आप इसमें विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर बेदारी को भेजेगा. God doesn't send revival because there is a lot of people seeking him for revival. परमेश्वर बेदारी को इसलिए नहीं भेजता कि कुछ बहुत से लोग उसकी बेदारी के लिए खोज रहे हैं, उसको खोज रहे हैं उसकी बेदारी के लिए. God doesn't send revival because we deserve it. परमेश्वर बेदारी को इसलिए नहीं देता कि हम उसके लायक हैं. God doesn't send revival because the men of God are anointed. परमेश्वर बेदारी को इसलिए नहीं भेजता कि परमेश्वर के जन जो है वो अभिषिक्त हैं. God sends revival because he is a merciful God. परमेश्वर बेदारी को इसलिए देता है क्योंकि वो तरस करने वाला परमेश्वर है. I was praying this morning and the Lord told me, hey, wait. When God sent revival in Nineveh, there was not a single believing person, including Jonah. There was not a single believing person and God sent a revival. परमेश्वर ने कहा कि जब मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कहा रुक जा इस बात के लिए. परमेश्वर ने निनवे में बेदारी को भेजा जब वहां पर एक भी विश्वास करने वाला नहीं था. यहोवा अभी उस समय वहां विश्वास नहीं करता था. Even the guy who preached the gospel didn't believe the gospel that he preached. उस समय जिसने सुसमाचार को प्रचार किया वो भी सुसमाचार में विश्वास नहीं रखता था. He wanted God's judgment to come and destroy Nineveh. वो चाहता था कि परमेश्वर का अधिकार वहां पर आए, उस जगह का नाश कर दे. He didn't want Nineveh to repent. The Bible says the whole city, the entire city, from the people on the roads till the king's palace, everybody repented and they came to Jesus and they returned to God. Overnight that happened. If that can happen in a wicked city like Nineveh, if that can happen in the old covenant days, if that can happen under the times when things used to happen under the law and not the grace, and that happened at a time when salvation was open only to the Israelites, only to the Jews. It was only for Israelites during those days. If that could happen then, how much more can God do in Delhi? How much more can God do here this morning? How much more can God do it in your family? God do it in your church. God do it in your office. God do it in everywhere that God has placed you. अगर वहाँ पर हो सकता है तो ये उससे कितना बढ़कर हमारे शहर दिल्ली में हो सकता है, आपके परिवारों में हो सकता है, आपके कलीसिया में हो सकता है, आपके दिल में हो सकता है. Do you believe that? क्या आप इसमें विश्वास रखते हैं? Trust me, even if you don't believe, it will happen. Because these are the last days. क्योंकि ये अंत के दिन हैं. The Bible says, on the last days, I shall pour out my spirit on. परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपनी पवित्र आत्मा उतारूंगा. Everybody. हर एक पर. Even if you believe it or not believe it, it will come.
आप विश्वास करें या विश्वास ना करें, वो आएगा। Even if we gather together for revival meetings or no, Delhi is gonna be revived in Jesus' name. आप इस रिवाइवल मीटिंग के लिए इकट्ठे हो, मिले ना मिले, दिल्ली में बेदारी आएगी यीशु मसीह के नाम के लिए। This is what Mordecai told Esther. ये मुर्दकाई ने एस्तर से कहा। Mordecai said, hey, don't worry. If you don't preach gospel, don't think that salvation will not come. उसने कहा कि अगर कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, अगर तू समाचार का प्रचार नहीं करेगा तो ये मत सोच कि उद्धार नहीं आएगा। If you don't pray, don't think that salvation will not come. अगर तू प्रार्थना ना करे तो ऐसा मत सोच कि उद्धार नहीं आएगा। If you don't go for prayer meetings, don't think that revival will not come. अगर आप प्रार्थना की सभा के लिए ना जाएं तो ऐसा मत सोचिए कि बेदारी नहीं आएगी। Revival has been prophesied, revival has been promised, and it will come whether or not we believe it. बेदारी की भविष्यवाणी हो चुकी है, बेदारी का वादा दिया जा चुका है कि आप आए या विश्वास करें ना करें, बेदारी आएगी। Then why is it important that we believe it? तो इस बात की महत्व क्या है कि हम उसमें विश्वास रखें? Because this is why it is important. अब आपको बताएंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। If you would believe it, अगर आप उसमें विश्वास करें, if you would believe that God is sending revival, अगर आप विश्वास करें कि परमेश्वर बेदारी को भेज रहा है, if you would believe that God wants to revive my city, अगर आप इस बात में विश्वास रखें कि परमेश्वर मेरे शहर में बेदारी को लाना चाहता है, when revival comes, God will use you. जब बेदारी आएगी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। When revival comes, you will be a part of it. जब बेदारी आएगी आप उसका एक हिस्सा होंगे। When revival comes, you will be one of those Peters who will stand up and preach the sermon that will bring souls to Jesus. जब बेदारी आएगी तो आप उस पतरस की नहीं होंगे जो खड़ा होकर प्रचार करेगा और बहुत सी आत्माएं बचाई जाएंगी। You will be one of those Philips who will be taken up in the spirit to save that one eunuch who had nobody to preach the gospel to him. आप उस फिलिप्स में क्या होंगे जो एक जगह पे ले जाया जाएगा उन लोगों को बचाने के लिए जहां पर कोई उनको बचाने के लिए नहीं था। Can you feel your spirit stir up as I say this to you that God wants to use you for revival? क्या आपकी आत्मा में इस बात को आया है, आपकी आत्मा को हिलाया गया इस बात से कि जब मैंने आपको कहा कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है बेदारी के लिए? God wants to use you for revival. परमेश्वर आपको बेदारी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। I was praying this morning and I was asking God, am I really worthy to be used for revival? मैं आज सुबह प्रार्थना कर रहा था और मैं परमेश्वर से कह रहा था कि क्या सच मायने में परमेश्वर मैं इस योग्य हूँ कि मुझे बेदारी के लिए इस्तेमाल किया जाए? The Lord said Jonah didn't believe that there will be revival and still I used him to bring a revival. प्रभु ने कहा कि जोना ने विश्वास नहीं किया था कि रिवाइवल की आवश्यकता है, तब भी मैंने उसका इस्तेमाल किया। Jonah was selfish. जो जोना था वो आत्म केंद्रित था। And I know that so many times I don't believe. मैं जानता हूँ कि कई बार मैं भी विश्वास नहीं करता। Many a times none of us believe. कई बार ऐसा समय होता है हम में से कोई विश्वास नहीं करता। Many a times we all disobey God. और बहुत समय ऐसा आता है हम जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। Many a times we all take the wrong ships. अब कई बार ऐसा होता है कि हम सब गलत कार्य करते हैं, गलत कार्य में जाते हैं। Many a times we all go off to sleep. और कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब सो जाते हैं। There is storms all around Delhi and you are sleeping. और पूरी दिल्ली के अंदर तूफान आया हुआ है और आप सो रहे हैं। It's just crazy. Many a times we all can be like Jonah. ये बहुत सा अद्भुत करने वाली चीज है, मगर बहुत बार ऐसा होता है हम सब जोना की तरह बर्ताव करते हैं। But God says, I want to use you for revival. मगर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बेदारी के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। God is not going to use somebody from United States and Bangalore and Chhattisgarh. God is going to use the church in Delhi to bring a revival in Delhi. परमेश्वर किसी को बाहर अमेरिका से या बेंगलोर से या किसी और शहर से नहीं इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर यहाँ की कलीसिया को, यहाँ के जन को, यहाँ की बेदारी के लिए इस्तेमाल करेगा। When the Spirit of God was poured out on the first century church, जब परमेश्वर की आत्मा उड़ेली गई पहली सदी के कलीसियों पर, the 12 disciples, the same disciples who were walking around talking, that was known to everybody, they were the ones that were used for revival in the first century church. जो 12 चेले थे जो इधर उधर जा रहे थे, घूम रहे थे, लोगों ने जानते थे, पहचानते थे, वो सबसे पहले बेदारी के लिए इस्तेमाल किए गए। That is exactly whom God is going to use for revival here in Delhi. God is going to use the church in Delhi to bring revival. यही परमेश्वर यहाँ पर करने वाला
है, परमेश्वर बेदारी के लिए दिल्ली के लोगों को दिल्ली में इस्तेमाल करेगा। So many times we get so caught up with our regular days of life, our regular walks of life, that we think that preaching revival and bringing revival is a job of the pastor. हम कई बार अपने दिन के कार्यों में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, इतने ज्यादा मग्न हो जाते हैं कि हमें लगता है कि बेदारी को लाना और बेदारी के बारे में प्रचार करना तो पास्टरों का काम है। Singing about revival is the worship leader's job. जो रिवाइवल के बारे में गीत गाना जो है वो आराधना के अगुवे का काम है। All of that is not mine. My job is to go to church regularly. इसमें मेरा काम यह है कि मैं कलीसिया में लगातार जाऊं, and that I will give 1/10 of my 1/10 regularly to church. मैं लगातार अपने 10वें हिस्से का 10वां हिस्सा लगातार चर्च को दूं। That I will, if possible, I will clean a chair in church. The same chair that I'm sitting, I'll just clean it when I leave the church. जब मैं जिस कलीसिया में जाकर जिस कुर्सी में बैठता हूँ उसी कुर्सी को केवल साफ करूँ जब मैं चर्च आऊँ और जाऊँ। That I will do all these things. God is going to use my pastor, the senior pastor in my church. He is going to use him for revival in India. परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, मेरे कलीसिया के सबसे बड़े अगुवे को इस्तेमाल करेगा, सबसे बड़े पास्टरों को इस्तेमाल करेगा भारतवर्ष में बेदारी को लाने के लिए। But no. I'm just here to help the revival happen. मैं तो केवल यहाँ हूँ कि सिर्फ मदद कर सकूँ बेदारी के लिए। Can I tell you a bad news? क्या मैं आपको कहूँ एक दुखद खबर दूँ? There is no system of ordinary believers in the New Testament church. पर यहाँ पर कोई भी नए नियम की कलीसिया में अगर हम यहाँ देखें तो कोई भी साधारण विश्वासी का काम नहीं है। There is no ordinary heaven for ordinary believers. यहाँ पर कोई साधारण स्वर्ग नहीं है साधारण विश्वासी के लिए। Do you believe? Do you agree with what I'm saying? This is what the word says. क्या इस बात पर विश्वास करते हैं? ये परमेश्वर का वचन कहता है। To some he gave to be apostles. कुछ को उसने दिया कि वो प्रेरित हों। To some he gave the calling of being prophets. कुछ को उसने बुलाहट दी कि वो भविष्यवक्ता हों। To others he made them evangelists. कुछ को उन्होंने बनाया जो प्रचार करें। The others he made them teachers of the word of God. कुछ को उसने बनाया कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ा सकें। The others he made them pastors. कुछ को उसने पास्टर बनाया। There is no sixth category of ordinary believers. यहाँ पर छठा जो है साधारण विश्वासियों की कोई भी श्रेणी नहीं है। Wherever you are placed, let it be in Microsoft or Oracle or Adobe, wherever God has placed you, you are a prophet in that place. परमेश्वर ने जहां भी आपको रखा है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो एडोब हो, या किसी भी कंपनी में आपको रखा है, वहां के लिए आप भविष्यवक्ता हैं। You are supposed to be a pastor in that place. आप वहां पर होने वाले पास्टर हैं। You have to be a teacher of God's word in that place. आप वहां पर परमेश्वर के पढ़ाने वाले हैं। You have to walk like an apostle into that place. आपको एक प्रेरित के नाम उस जगह में घूमना है। You have to bring revival into every place that God sends you or has placed you in. आपको वहां पर बेदारी को लेकर आना है हर एक उस जगह में जहां परमेश्वर ने आपको रखा है या परमेश्वर आपको लेकर चलता है। Do you believe that? क्या आप इसमें विश्वास रखते हैं? Do you believe that God can use you क्या for आप विश्वास revival? रखते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा बेदारी के लिए? So many times when I think about revival, I think, oh no, that is a very distant thing. कई बार मैं जब ऐसा सोचता हूँ कि बेदारी वो तो बहुत दूर की बात है। You know how churches think, right? They think revival is what will happen when Jesus comes and in the 1,000-year reign everything will be fine and कई बार कलीसियाँ ऐसा सोचती हैं कि बेदारी तो तब आएगी जब यीशु मसीह आएगा, कुछ 1000 साल लगेंगे और बारिश होगी। And in the 1,000-year reign, Jesus will be king and everybody will be happy and there will be no sickness, no problem. That is revival. और सोचते हैं कि बेदारी वो है कि यीशु मसीह आएगा, वो राजा की तरह बैठेगा, वो राज्य करेगा, कोई बीमारी नहीं होगी, सब तरफ शांति होगी, वो बेदारी होगी। I said, God, would it take like 25 years, 40 years to bring a revival that will fill this entire place? मेरे को परमेश्वर से कहा क्या यहाँ पर 20-25 साल या 40 साल लगेंगे इस स्थान को पूरी तरह से भरने के लिए? How much ahead should I plan so that we will host a revival in this stadium? मैं इसको किस तरह से इसकी योजना बनाऊं कि मैं अपनी रिवाइवल मीटिंग को इन स्टेडियम्स में रख सकूं? How much ahead should I prepare to witness a revival in stadiums like this? मैं कितने साल आगे के लिए देखूं कि मैं अपनी रिवाइवल मीटिंग को इन जगहों पे रख सकूं? And the Lord said, you know what? It did not take 40 years for revival to come to Nineveh. और परमेश्वर ने कहा कि निनिनवे में भी 40 साल नहीं लगे थे रिवाइवल को आने के लिए।
It didn't take a long time of prayer and seeking for revival to come to Nineveh. निनवे में भविष्यवाणी को आने के लिए बहुत लंबा खोजना पड़ा, बहुत लंबा तक इंतजार करना पड़ा या प्रार्थना करना पड़ी, ऐसा नहीं हुआ था. It just required this one man who said, "Okay, God, I am changing my direction. I am changing from Tarshish to Nineveh. I am giving up on my Tarshish dreams to go to Nineveh. I'm not gonna take the comfortable. I'm gonna take the uncomfortable route, and I'm gonna obey God." And it just took the obedience of this one man to bring revival. And overnight there was revival in Nineveh. वहाँ पर केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो ऐसा कहे कि परमेश्वर मैं अपनी योजनाओं को पीछे रखता हूँ तेरी योजनाओं के लिए, जैसा जॉन ने कहा कि मैं इस तरफ नहीं, मैं कठिन मार्ग पर जाऊंगा. और वैसे एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो पूरे दिल से अपने मार्ग को, अपने काम को, अपने दर्शन को बदले, अपने स्वप्नों को पीछे रख दे परमेश्वर की बेदारी के लिए, और बेदारी एक दिन में आ जाएगी, एक रात में आ जाएगी. There are a lot of prophecies that revival will come into 2020, 2021, in 2030. I am not discrediting that. यहाँ पर बहुत सी भविष्यवाणियां दी गई हैं कि 2020 में रिवाइवल आएगा या 2021 में आएगा या 2030 में आएगा. मैं उसमें से किसी के भी विरोध में कुछ नहीं कह रहा हूँ. But can I ask you if you would believe God will send revival in your church tomorrow morning? क्या आप विश्वास रखते हैं इस बात में कि परमेश्वर बेदारी आपकी कलीसिया में कल सुबह भेज सकता है? Would you believe that? क्या आप इसमें विश्वास रखते हैं? If you would believe that when you stand up to preach, teach, or minister in your church tomorrow morning, God will send revival in Jesus' name. क्या आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि जब आप कल अपनी कलीसिया में खड़े होकर प्रचार करेंगे, पढ़ाएंगे, तो परमेश्वर उसी समय वहां पर बेदारी को भेज सकता है? But yes. Before that happens, there has to be a redirection of your travel. एक बात को ध्यान रखिए, मगर ऐसा होने के लिए आपको पहले अपने मार्ग को बदलना होगा. There has to be, you'll have to change ships. You will have to go from the Tarshish ship to the belly of the whale. आपको हो सकता है कि उससे आपको अपने जहाज को बदलना होगा, तो जहाज से आपको मछली के मुंह में जाना होगा. You might have to get into uncomfortable zones. आपको उस जगह पे जाना होगा जहां आपको आराम ना मिले. You might have to go where you are sitting under a tree and it's hot all around like it's hot in Delhi. और आपको हो सकता है उस पेड़ के नीचे जाके बैठना पड़ेगा जहाँ आप पेड़ के नीचे बैठे और चारों तरफ पूरी तरह से गर्मी हो, जैसे यहाँ गर्मी दिल्ली में होती है. Because what happens is life with Jesus is not always comfortable. क्योंकि ऐसा होता है कि जीवन यीशु मसीह के साथ हमेशा सुखद नहीं होता. And in the same way, God will send you to some really uncomfortable places and situations in order to bring revival through your life. परमेश्वर ऐसे ही आपको अलग-अलग जगहों पे भेजेगा जहाँ पर आपको आराम नहीं मिलेगा, जहाँ पर मुश्किल होगी, कठिनाइयाँ होंगी, कि वो आपके जीवन में बेदारी को लेके आ सके. And this is the prayer that we prayed over the last 40 days preceding this day. अगर हम यही प्रार्थना पिछले 40 दिन से कर रहे हैं आज के दिन तक. We've been praying that God, only the ones that you have prepared for revival in Delhi should come for the conference. हम इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर केवल उन्हीं को इस सभा में लेकर आ जिनको तू बेदारी के लिए तैयार कर रहा है दिल्ली शहर में. Only the ones that you're preparing to pour out your Holy Spirit upon and through, bring them for this conference on September 14th. इसी बात की प्रार्थना की जा रही है कि 14 सितंबर को केवल उन्हीं जनों को लेकर आ जिनको तू बेदारी के लिए अपनी आत्मा उड़ेलना चाहता है. And as I look at you, I can say it with 100% confidence that God is going to use you, each one of you for revival here in Delhi. जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं हयाब के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा दिल्ली में बेदारी के लिए. Not because you are good. इसलिए नहीं कि आप अच्छे हैं. Not because you have met the standards. इसलिए नहीं कि आपने किसी स्तर को पा लिया है. Not because you've accomplished the 10 things that is in your to-do list for every day. इसलिए नहीं कि आपने जो अपनी नीति बनाते हैं कि मुझे ये 10 काम आज करने हैं, आपने सारे वो कर लिए हैं. You know, I have this thing, my wife is back there. She is somebody who loves to be random. वो एक मेरी पत्नी पीछे बैठी है, वो इस तरह से है कि वो कुछ ऐसी है जो कभी भी किसी कार्य को करना चाहती हैं. But I'm somebody who is really organized. I have my things to do. Wake up in the morning at this particular time, pray this particular time, read my Bible, and I have my 10-15 things to do every morning. मैं सीधे से चीजों को रखना चाहता हूँ कि मुझे सुबह इतने बजे उठना, इतने बजे पढ़ना, इतने बजे प्रार्थना करनी है, और मैं वो 10-12 चीजों की सूची बना के रखता हूँ, मुझे उसे उसी समय करना है. And I go to sleep so content every time I'm able to do all 15 of them. और मैं इतना खुश होकर शांति से सोने जाता हूँ उस समय जब मैं वो 10-15 चीजें कर लेता हूँ हर दिन.
And I believe revival will come because I have kept those 10 things every day for the last 7 days. मैं विश्वास करता हूँ कि बेदारी आएगी क्योंकि मैंने वो सारी चीजों को पूरा किया है पिछले 7 दिनों में। I believe like that, but that's not true. सॉरी, मैं सोचता हूँ कि ऐसा है मगर ये सच नहीं है। Revival does not come because we are good. बेदारी इसलिए नहीं आएगी कि इसलिए कि हम अच्छे हैं। I would love to believe that because we were on a 40-day prayer that God will send revival. हम इस बात पर बहुत खुश होते हैं, विश्वास करते हैं कि हम 40 दिन से प्रार्थना कर रहे थे इसलिए बेदारी आएगी। I would so love to believe that 40-day fasting and prayer that God would say, hey, wow, I'm so impressed. I'm gonna send revival in Delhi. मैं इस बात पर विश्वास करना चाहता हूँ कि हाँ 40 दिन से आप उपवास की प्रार्थना कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारे लिए दिल्ली में बेदारी को भेजता हूँ। But the Lord says, I want to send revival because I love my people. मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दारी को भेजना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि मैं अपने जन से प्यार करता हूँ। The Lord says, I want to send revival because I have mercy upon their tears. परमेश्वर कहता है कि मैं बेदारी को इसलिए भेजना चाहता हूँ कि मेरा तरस है उनके आंसुओं पर। My heart is so much more broken than how much the media has been fussing about the rapes and all the crimes that is happening in the capital. परमेश्वर कहता है कि मेरा हृदय ज्यादा दुखित है उन बातों से जो मीडिया दिखा रहा है कि दिल्ली में यहाँ पर रेप हो रहे हैं या और परेशानियां और यहाँ पर और भ्रष्टाचार है। You know, the media thinks that it's the country that is weeping, but can I tell you something? God is weeping over the city every time something goes wrong. जो मीडिया है वो कहता है कि लोग रो रहे हैं इस बात पर, मगर आपको एक सच्चाई को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हर बार ऐसी घटनाओं पर रोता है। The Lord's heart goes out for our city of Delhi. परमेश्वर का हृदय उबड़ कर बाहर आता है हमारे शहर दिल्ली के लिए। The Lord loves this city more than we love Delhi. परमेश्वर इस शहर को हमसे ज्यादा प्यार करता है, जितना प्यार हम दिल्ली को करते हैं उससे ज्यादा। But yeah, that is the truth. The Lord really loves Delhi. ये सच है कि परमेश्वर सच मायने में दिल्ली से प्यार करता है। When as the body of Christ, जब यहाँ पर परमेश्वर के देह होने के नहीं, when we connect to what the head wants from the body, जब हम इस बात से अपने आप को जोड़ते हैं कि सर देह से क्या चाहता है, when we connect to what is the heart of God for our city, जब हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का हृदय क्या है हमारे शहर के लिए, when we connect to what God wants to do through my life in my city, जब हम इस बात से जुड़ते हैं कि क्या परमेश्वर चाहता है मेरे जीवन के द्वारा मेरे शहर के लिए, when we become sensitive to what God wants to do through me at my workplace, जब हम इस बात के लिए संवेदनशील हो जाते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है वो मेरे द्वारा करे मेरे कार्य करने के स्थान पर, God will send revival. तब परमेश्वर बेदारी को भेजेगा। Trust me, when we do this conference, it's really not about any of the speakers or the worship leaders in this place. जब इस बात का विश्वास रखिए कि जब हम सभाओं को करते हैं तो कुछ में से भी यहाँ जो लोग आज बोलने वाले वो नहीं होते या ये गीत गाने वाले नहीं होते। It's not about any of us. ये हम सब के बारे में नहीं है। It's about this God who really loves Delhi and is passionate about Delhi. ये केवल और केवल परमेश्वर के बारे में है जो बहुत से आप लोगों से और दिल्ली से प्यार करता है। And God wants to send revival over Delhi. क्योंकि परमेश्वर दिल्ली में बेदारी को भेजना चाहता है। And the Lord wants to pour out His Spirit over this nation. और परमेश्वर इस देश में अपनी आत्मा को भेजना चाहता है। And God is going to use Delhi as one of those points from where it will flow all over this nation. और परमेश्वर दिल्ली को इस्तेमाल करना चाहता है उस बिंदु की नहीं जहां से ये उड़ेल के दूसरे देशों और दूसरे शहरों पे उड़ाना जाएगा के लिए। This morning we are going to pray and ask God, what is it that you have for my life in this city? आप इस बात के लिए सुबह प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से पूछेंगे कि परमेश्वर क्या है तेरे पास मेरे जीवन में इस शहर के लिए। And so we're going to spend time in worship. इसलिए हम समय बिताएंगे आराधना में। We're going to spend time in hearing the word of God. हम समय बिताएंगे परमेश्वर के वचन को सुनने में। And we're going to spend time praying. हम प्रार्थना में समय बिताएंगे। And we are going to spend time receiving a fresh impartation from the Holy Spirit. और हम समय बिताएंगे परमेश्वर के तेरे ताजा पवित्र आत्मा को ले जाने में। And we are going to spend time asking the Holy Spirit to come and baptize us with His presence. और हम इस बात में समय बिताएंगे कि पवित्र आत्मा को हम कहें आकर हमारा यहाँ पर बपतिस्मा कर।
Any ordinary believer, do you think you're an ordinary believer? This is all that you need to become an extraordinary believer, the baptism of the Holy Spirit. किसी भी साधारण विश्वासी को सिर्फ एक यही चीज चाहिए एक असाधारण विश्वासी बनने में, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। This is all that you need, a baptism of the Holy Spirit. यही केवल आपको चाहिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। And the baptism of the Holy Spirit does not happen once upon a time, long back. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ऐसा नहीं है कि पहले कभी हुआ था, बहुत साल पहले, And we live in that for the rest of our lives. और उसके बाद हम अपने पूरे जीवन उसमें जीते हैं। We testify in church in the year 1996, the Lord filled me with His Spirit, and since then I have been empty. कि परमेश्वर को हम अपने कलीसिया में इस बात की गवाही देते हैं 1990 में परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा था और तब से अब तक मैं खाली हूँ। No. It's not for you to. The Bible says, "Do not be drunk with wine, but be filled in the Holy Spirit." परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मदिरा से पीकर तर ना हो जाए, मगर आप पिए पवित्र की पवित्र आत्मा से। Which means you're not supposed to do that just once upon a time, but every day remain, be filled in the Holy Spirit, remain baptized in the Holy Spirit. इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि आप केवल एक बार पवित्र आत्मा से भरे गए, इसका मतलब ये है कि आप रोज हमेशा तरोताजा पवित्र आत्मा में डुबोए जाएं। And it is John who said, you know, the one who comes after me, he will baptize you with Holy Spirit and with fire. ऐसा यूहन्ना ने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें बपतिस्मा देगा पवित्र आत्मा का और आग का। My baptism is the baptism of water. जो मेरा बपतिस्मा है वो पानी का बपतिस्मा है, But the one that is coming after me, his baptism is as powerful as baptism of fire. जो मेरे बाद आता है उसका जो बपतिस्मा है वो इतना सामर्थी बपतिस्मा होगा, उतना सामर्थी जितना सामर्थी आग का बपतिस्मा है। Sorry, we don't believe in sprinkle baptism. हम यहाँ पर हम उस बात में विश्वास नहीं करते कि जहाँ पर आपको छींटे मार के बपतिस्मा दिया जाए। We believe in immersion baptism. हम उस बपतिस्मा में विश्वास करते हैं जहाँ पर आपको डुबाया जाए उसमें। We don't believe in candle baptism of fire. हम नहीं चाहते यहाँ पर मोमबत्ती का जो बपतिस्मा हो आग का। We believe in a baptism where you will be so deep inside of fire that when you come outside there will be that you will become like fire, that your walk will be fiery, that your talk will be fiery, that everything that you do and say will represent what the Holy Spirit is speaking through your life. जब हम चाहते हैं कि जब आपका बपतिस्मा हो तो आप इतनी पूरी तरह से आग में डुबोए जाए कि जब आप बाहर निकले तो आप पूरी तरह परमेश्वर की नाई की आग से जलनशील हो और जल रहे हो, कि आपकी जो आग है उसमें, जो आपकी चाल है उसमें जलन हो, जो आप प्रचार करें उसमें जलन हो। Amen. Amen. This morning we are going to begin praying.